Good morning, students. Now, in today's lecture, we will discuss different types of substances. Generally, substances are classified into three types: diamagnetic substance, paramagnetic substance, and ferromagnetic substance. तो यहाँ पर नंबर वन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब इसका मीनिंग क्लियर करते पहले डेफिनेशन देखिए। Those substances which are weakly magnetized in the direction opposite to that of external magnetic field are called as diamagnetic substances। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटाइज होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसकी डायरेक्शन ये अपोजिट हो जाती है टू दैट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड सच मटेरियल्स आर नोन एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एंटीमनी, ये इसका सिंबल है यहाँ पर एंटीमनी। देन बिस्मथ, BI बिस्मथ, ओके। देन कॉपर, CU। सिल्वर मतलब AG, गोल्ड AU, ओके। सोडियम क्लोराइड NaCl। देन डायमंड, ये एक एग्जांपल है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का। उसके बाद वाटर, देन एयर, H2 गैस, ओके, नाइट्रोजन गैस, etc. These are some examples of diamagnetic substances. The behavior of diamagnetic substances in external magnetic field is known as diamagnetism. This property is shown by solid, liquid and gases. Okay. Now, diamagnetism is found to exist normally in the substances whose atoms or molecules have even number of electrons. The orbital motion of electron in a pair are in opposite direction. So each atom has net magnetic dipole moment equal to 0. So in the absence of external magnetic field, see, in the absence of external magnetic field, okay, let this is diamagnetic substance. Magnetic dipole moments of all the electrons in atom cancels each other. Therefore, resultant magnetic dipole moment of atoms of diamagnetic substance is 0. Okay, that means देखिए यहाँ पर suppose due to each atom, okay, magnetic dipole moments is denoted by this arrow, and these arrows are randomly directed. So therefore the net dipole moment is equal to 0. M net is equal to 0 in the absence of external magnetic field. यहाँ पर external magnetic field नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। Now when diamagnetic substance is kept in the presence of external magnetic field, let this is the direction of external magnetic field from left to right. तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, it causes an acceleration of one electron and deceleration of other in pair. So net dipole moment is produced in a direction opposite to that of the field. इसका मतलब क्या होता है कि when the diamagnetic material are kept in an external magnetic field, those electrons whose orbital magnetic moments are in the same direction as that of the external magnetic field स्लोज डाउन। मतलब देखिए, सपोज यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, दिस आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन विच मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट मूव होगा, ठीक है। अब जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके, अब जिस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल इन द
सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी. ओके, एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स हुज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड गेट स्पीड्स अप, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. इट विल प्रोड्यूस इंड्यूसर करंट and the inducer current produces inducer magnetic moment in opposite direction, so that of the applied magnetic field. Okay, hence atomic magnets of diatomic substances will align in opposite direction. तो इसके वजह से यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स प्रोड्यूस होंगे दे आर अलाइन इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पर ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है स्टूडेंट. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यम नेट. ओके, मतलब अब ये यम नेट की वैल्यू बहुत कम होती है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल. ओके, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जिसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक. तो यहाँ पर यम नेट इज़ नॉट इक्वल टू 0, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है स्टूडेंट. ओके, और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड सपोज B1 जिसकी डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट. तो इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस सब्सटेंस के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जिसकी डायरेक्शन कैसी होती है अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. इसलिए देखिए दो सब्सटेंसेस विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सच सब्सटेंसेस मटेरियल्स और सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ओके, इसका मतलब क्या होता है देखिए एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइज होने के बाद इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दोनों एग्जैक्टली अपोजिट है. अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द मैग्नेटिक मटेरियल दैट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ओके इज वेरी वेरी स्मॉल, इज वेरी बिग. सो बीइंग इन अपोजिट डायरेक्शन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पर ये रिपल्शन होता है यहाँ पर. सो वी कैन डिफाइन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस also in this way, those substances which are weakly repelled by the magnetic field या magnet are called diamagnetic substances. Okay, now magnetic susceptibility of diamagnetic substance is very small and negative. तो ये बहुत कम होती है और नेगेटिव होती है. Why? Because magnetize in opposite direction that of the applied magnetic field, इसलिए नेगेटिव. और इस काय की वैल्यू कितनी होती है अबाउट 10⁻⁵ इतनी होती है. नो रिलेटिव परमेबिलिटी इज स्लाइटली लेस देन 1. तो रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब म्यू आर की वैल्यू स्लाइटली लेस देन 1 होती है. ओके, तो रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब पता है ना आपको म्यू डिवाइडेड बाय म्यू 0, मतलब relative permeability is equal to permeability of the medium to the permeability of free space और vacuum. तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू स्लाइटली लेस देन 1 होती है. देन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज स्मॉल एंड अपोजिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड. देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसका रिजल्टेंट 0 नहीं होता है. इट हैज़ वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल एंड अपोजिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड. और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट इट इज़ अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट जैसे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल अगर हम एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड तैयार होती है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है. नो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इसका मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का एन पोल इधर होगा और एस पोल इधर होगा. तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर उसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है. मतलब यहाँ पर ये एन पोल
और यहाँ पर ये यस पोल होगा। तो अपोजिट यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओके, अब कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ या फिर कहे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस कर लिए। ओके, सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, ये एक फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्मॉल एंड नेगेटिव, ये कैरेक्टरिस्टिक। रिलेटिव परमेबिलिटी इज स्लाइटली लेस देन 1। ओके, तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब इसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो प्रोड्यूस होता है इट इज़ वेरी स्मॉल एंड अपोजिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है, राइट। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखिए स्टूडेंट, इफ थिन रॉड ऑफ डायमैग्नेटिक is freely suspended in magnetic field, okay, it comes slowly to rest with its length perpendicular to the direction of magnetic field. सपोज यहाँ पर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एन पोल और यस पोल, तो डायरेक्शन कैसे होगी, फ्रॉम एन पोल टू यस पोल। तो देखिए यहाँ पर अगर ये रेड कलर मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल का एक थिन रॉड है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल रखने की कोशिश करते हैं तो एंड्स के बीच यहाँ पर रिपल्शन होगा। ओके, बिकॉज डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो वहाँ पर रिपल्शन होगा। तो एन पोल विल रिपेल दिस एंड, ओके, और यस पोल विल रिपेल दिस एंड, तो ऐसे वर्टिकल में आ जाएगा। नो, इट विल नॉट रिमेन इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन बिकॉज यहाँ पर फिर से रिपल्शन हो सकता है। तो बोथ एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट, दैट इज ओके, बोथ एंड्स ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल, ओके, रिपेल बाय ईच पोलैरिटी ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सो इट रिमेन्स इन वर्टिकल पोजिशन लाइक दिस। सो अगर हम थिन रॉड लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, तो दिस रिमेन्स इन अ वर्टिकल पोजिशन in this way. This is the thin rod of diamagnetic substance. तो ये वर्टिकल पोजीशन में रहेगा स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पर स्मॉल रिपल्शन होता है। ओके, नो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, व्हेन प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। अब देखिए एन पोल और ये यस पोल कंसिडर करते हैं हम, तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोलैरिटी है और ये वीक मैग्नेटिक पोलैरिटी है। ओके, इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होंगे, और यहाँ पर कम मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होंगे। ओके, एंड दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कुछ इस तरह के होंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम मैग्नेटिक मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का थिन रॉड लेते हैं, अगर उसको एट द मिडल प्लेस करते हैं तो रिपल्शन होगा ना, तो जिधर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ से स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा, और जिधर कम मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ से कम रिपल्शन होगा। तो अगर हम सेंटर में थिन रॉड रखने की कोशिश करते हैं तो फ्रॉम एन पोल इट विल रिपेल मोर, सो the thin rod of magnetic मतलब diamagnetic material will move from strong magnetic field towards the weak magnetic field। तो ये ऐसे मिडल में एग्जैक्टली नहीं रहेगा जैसे यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्यों मिडल में, बिकॉज दोनों पोलैरिटी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दोनों पोलैरिटी सेम है, बट यहाँ पर एन पोल की पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यस पोल की पोल स्ट्रेंथ कम है, तो एन पोल द्वारा ज़्यादा रिपल्शन होगा, यस पोल द्वारा कम रिपल्शन होगा। तो ये सेंटर में नहीं रहेगा स्टूडेंट, इट विल मूव टुवर्ड्स द वीकर मैग्नेटिक फील्ड। मतलब व्हेन प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मूव्स स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड, इस तरह से, बिकॉज यहाँ पर रिपल्शन होता है। ओके, देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखिए, इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड to a diamagnetic liquid in one arm of U-tube, the liquid level in that arms is lower। देखिए सपोज यहाँ पर ये U ट्यूब है, U शेप्ड ट्यूब,
ओके, दिस इज यू शेप ट्यूब। और अगर हम इसके अंदर डायमैग्नेटिक मटेरियल का सॉल्यूशन मतलब लिक्विड फिलअप करते हैं, ओके, तो पहले तो ये सेम लिक्विड लेवल रहेगी दोनों इसमें। लेट दिस इज डायमैग्नेटिक लिक्विड, ओके, तो दोनों आर्म से ये लेवल सेम रहेगी स्टूडेंट, लाइक दिस, ओके। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक मैग्नेट लाते हैं इसके पास, ओके, सो दिस इज एन पोल एंड एस पोल। तो अगर एक मैग्नेट एक आर्म के पास लाते हैं, एन पोल इज मूविंग टूवर्ड्स वन ऑफ द आर्म ऑफ द यू शेप ट्यूब, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस लिक्विड बिकॉज दे आर डायमैग्नेटिक लिक्विड, ओके, तो मैग्नेट और डायमैग्नेटिक मटेरियल के बीच रिपल्शन होता है या अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, बिकॉज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। तो यहाँ पर ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल के, दे गेट रिपेल, रिपल्शन की वजह से नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसकी जो लेवल होगी, ओके, तो यहाँ पर ये इसकी लेवल कम हो जाएगी लिक्विड की, और दूसरे आर्म में फिर लिक्विड लेवल इंक्रीज हो जाएगी इस तरह से, बिकॉज दिस लिक्विड मॉलिक्यूल्स गेट रिपेल फ्रॉम दिस मैग्नेट। तो रिपल्शन की वजह से ये इट मूव्स अवे फ्रॉम दिस पोलैरिटी, ओके, सो इन दिस वे द लिक्विड लेवल इन दिस आर्म गेट लोअर्ड। तो उसकी वजह से दूसरे आर्म में क्या होगा, लिक्विड लेवल राइज होगा। तो इस तरह से इनबैलेंस लिक्विड लेवल होगी। अगर हम इस बार मैग्नेट को हटा देते हैं तो ये लिक्विड लेवल फिर से सेम लेवल पर आ जाएगी, ओके। उसी तरह से अगर इसको हम दूसरे आर्म की तरफ लाते इधर से मैग्नेट, तो ये लिक्विड लेवल लो हो जाएगी और इधर लिक्विड लेवल रेज हो जाएगी। सो दिस शोज दैट देयर इज रिपल्शन बिकॉज डायमैग्नेटिक लिक्विड और मटेरियल और सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इफ अ वॉश ग्लास कंटेनिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डायमैग्नेटिक लिक्विड placed on two dissimilar magnetic poles which are close to each other, the liquid shows a depression in the middle. देखिए स्टूडेंट, if we take डायमैग्नेटिक लिक्विड इन अ वॉश ग्लास मतलब ये इस तरह का बाउल होता है ग्लास का, सो नोन एज वॉश ग्लास, ओके। अगर इसके अंदर हम डायमैग्नेटिक लिक्विड लेते हैं तो देखिए इस तरह से लिक्विड सरफेस होगा, प्लेन लिक्विड सरफेस होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर दिस वॉश ग्लास को अगर यहाँ पर रखते हैं दो डिफरेंट मैग्नेट्स के पोल पर और उनकी पोलैरिटी अलग होगी, सपोज दिस इज एन पोल, दिस इज एस पोल, एंड दोनों पोलैरिटी के बीच डिस्टेंस बहुत कम होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जनरली हमें पता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के मॉलिक्यूल्स मैग्नेट से रिपेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे स्टूडेंट, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ओके, सो दे मूव अवे फ्रॉम द पोलैरिटी, इस तरह से ये मूव अवे होंगे बिकॉज देयर इज रिपल्शन। तो इसकी वजह से ये यहाँ पर लिक्विड लेवल इस तरह का कुछ होगा स्टूडेंट, इस तरह से, लाइक दैट, okay, so these molecules get repelled from this polarity of the bar magnets, so ये मूव अवे होने के कारण यहाँ पर इस तरह से एलिवेशन आ जाएगा और एट द मिडल देयर इज डिप्रेशन प्रोड्यूस, ना यहाँ पर डिप्रेशन ऐसा प्रोड्यूस होगा, राइट। नाउ ओके, एंड if diamagnetic liquid placed in a watch glass placed on two pole pieces which are apart, then liquid accumulates in the middle। मतलब वॉच ग्लास अगर हम प्लेस करते हैं ऑन द टू डिसिमिलर पोलैरिटी ऑफ द बार मैग्नेट्स, सपोज ये एन पोल और ये एस पोल है, लेकिन उनके बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर बहुत डिस्टेंस कम है और यहाँ पर वही डिस्टेंस ज़्यादा हो गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, कि यहाँ पर जो लिक्विड होगा वो बीच में एक्यूमुलेट होगा।
देखिए मॉलिक्यूल्स गेट रिपेल इन दिस वे, यहाँ के मॉलिक्यूल्स भी फ्रॉम यस पोल रिपेल हो जाएंगे। तो ये रिपेलिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बीच में ऐसे एक्यूमुलेट हो जाते हैं लाइक दिस, इस तरह से कुछ। तो यहाँ पर एलिवेशन होगा। ओके, मतलब यहीं पर देखिए अगर एन पोल और एस पोल के बीच, मैग्नेट पोल के बीच डिस्टेंस अगर बहुत कम रखते हैं तो यहाँ पर डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है। ओके, और अगर इनके बीच अगर डिस्टेंस हम इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर एलिवेशन प्रोड्यूस होगा लाइक दिस, बिकॉज रिपेल मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं एट द मिडल। तो इसके वजह से यहाँ पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो ये इस तरह से एलिवेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये रिपेल मॉलिक्यूल्स एट द मिडल ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स accumulate at in the middle। ओके ओके, और इस दोनों कंडीशन में देखिए स्टूडेंट, अगर ये पोलैरिटी मतलब एन पोल एस पोल मैग्नेट्स हम हटा देते तो फिर से लिक्विड लेवल ऐसी प्लेन हो जाएगी, और यहाँ पर भी। नो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या देखिए, इफ डायमैग्नेटिक गैस इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट इट स्प्रेड एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। कंसिडर कीजिए यहाँ पर एन पोल है और यहाँ पर एस पोल है। ओके, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, फ्रॉम एन पोल टू एस पोल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये मैग्नेट यहाँ पर अप्लाई करने के पहले क्या होगा कि गैस मॉलिक्यूल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड इन द कंटेनर। सपोज ये गैस कंटेनर है तो इसके अंदर ये गैसेस मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली स्प्रेड होंगे स्टूडेंट। अब जबकि ये एन पोल और एस पोल अप्लाई किया है हमने, तो गैसेस मॉलिक्यूल जो इस कंटेनर और सरफेस के नज़दीक है तो रिपेल होंगे इनवर्ड, या ऐसे इनवर्ड रिपेल होंगे, और इधर से भी गैसेस मॉलिक्यूल फ्रॉम एस पोल गेट रिपेल, और ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे एट द मिडल। ओके, तो रिपल्शन के बाद यहाँ पर डायग्राम कैसे होगी स्टूडेंट, कि ऑल गैसेस मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट एट द मिडल इन वर्टिकल डायरेक्शन लाइक दिस। यहाँ पर सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे बिकॉज दे आर रिपेल फ्रॉम बोथ द पोलैरिटी एंड्स। तो इसलिए फिर यहाँ पर गैसेस मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो जाएंगे एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। Clear? If diamagnetic gas is introduced between pole pieces of magnet, it spread at right angles to the direction of magnetic field। अगर हम ये एन पोल और एस पोल हटा देते तो फिर से ये गैसेस मॉलिक्यूल जो मैग्नेटाइज हो गया वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी लूज कर देगा। ओके, तो एन पोल एस पोल अगर हटा देते हैं तो फिर से ऑल जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे इस कंटेनर के अंदर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर स्टूडेंट, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मतलब दो सब्सटेंसेस विच आर वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दे आर वीकली रिपेल बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम क्लोराइड, डायमंड, वाटर, एयर, H2, N2 एट्सेट्रा। ओके, तो ये कुछ यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिए स्टूडेंट। नाउ अब यहाँ पर एक दो पॉइंट्स और कौन से देखिए, जैसे कि द मोस्ट exotic diamagnetic material are superconductors। सुपरकंडक्टर्स पता है आपको, मतलब ज़्यादातर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ये सुपरकंडक्टर्स होते हैं स्टूडेंट। अब सुपरकंडक्टर्स का मतलब क्या होता है
कि ऐसा मेटल जो अगर हम उसका टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं टू वेरी लो टेम्परेचर्स, जनरली नियर टू एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब -273, है ना, -273 डिग्री सेल्सियस के क्लोज अगर हम उसका टेम्परेचर लेके आते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पर दैट मेटल एक्ट्स एज सुपर कंडक्टर, मतलब उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है. सो एट वेरी लो टेम्परेचर diamagnetic material shows both perfect conductivity and perfect diamagnetism. Okay, the phenomenon of perfect diamagnetism in superconductor is known as Meissner effect. This is known as Meissner effect. So what is Meissner effect? That is the phenomenon of perfect diamagnetism in superconductor is called Meissner effect. ओके स्टूडेंट, और ये मेसनर इफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में ज़्यादा पाया जाता है, राइट.